हाँ रोशन। 45 45 सर। 35 कौन सा लेक्चर था बेटा? सर ये अच्छा ए इलेक्टिव था, आई इलेक्टिव। आइए एक इलेक्टिव में और 35 आए होंगे, दूसरे में 39 आए होंगे, तो हो गया। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? बाकी डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ना आप लोगों को? नो सर। Okay, very nice. So let's begin with the lecture. Already the recording has started. So I present the screen, the window, and this window is a slideshow. Let's begin. So everybody will start reading this question. I am reading, and after that you can copy it afterwards. Then the PPT is uploaded on the classroom. So the following data refers to a simple air refrigeration cycle of 20 tons of refrigeration. What is the capacity of the system? 20 ton. What is the capacity of the system? What is the 20 capacity of the टन। system? 20 ton. So it is 20 ton of refrigeration. Q is equal to 20 ton, which is how many kilowatts? 20 into 3.5. Am I clear? Yes, sir. The ambient air temperature and pressure, that is T1 is equal to 20 degrees Celsius, which is 293 Kelvin. T1 is equal to zero point 0.8 bar. The RAM air pressure is zero point 0.9 bar. P2 is equal to zero point 0.9 bar. Compressor outlet pressure is 3.6 bar. P3 is equal to 3.6 bar. Temperature of air leaving the heat exchanger is 60 degrees Celsius. If the compressor outlet is 3 or 3 dash, the temperature of air leaving the heat exchanger will be 4. So T4 is equal to 60 degrees Celsius, which becomes 273 plus 60, that is 333 Kelvin. Okay. Pressure of air leaving the turbine is 1 bar. So 4 to 5, pressure 5 is 1 bar. अब मेरे को ये सब चीजें याद है, मेरे को ये टीएस डायग्राम याद है, इसलिए मैं 1 2 3 4 बोलते जा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा भी पैनिक मत होइए, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा और आपको सब क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कैबिन इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कैबिन, तो the pressure of air leaving the turbine is 5 से कहाँ पे जाएगा? कैबिन में। So 6 is 27 degrees Celsius, which is 300 Kelvin. Compressor efficiency is 80%. Turbine efficiency is 75%. That means इस P3 के साथ साथ एक P3 होगा, P3 डैश होगा। P3 डैश इज इक्वल टू P3। वो 3.6 बार पे ही कंप्रेशन एंड होगा, बस एंट्रोपी एडिशन से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आइसेंट्रोपिक रैमिंग प्रोसेस है आपका। जो रैमिंग है दैट इज आइसेंट्रोपिक है आपका। रैमिंग जो है वो कैसा है बेटा? आइसेंट्रोपिक। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द मास फ्लो रेट, we are supposed to find out the mass flow rate, we are supposed to find out the power required, we are supposed to find out the COP. It is a similar question as we have done yesterday. What we did yesterday, we took a bootstrap refrigeration system. Is that clear? So we have read all the question and I have given the naming. Considering that I know everything, but once I will draw the diagram, everybody will be able to follow this. What is 1 2 3 4 5 6, आप लोगों को ऑलमोस्ट पता है, और जैसे मैं टीएस डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। So my dear friends, I take a TS diagram, I take a TS diagram, I take a TS diagram, and on this TS diagram, I'll draw the pressure lines. So first of all, I'll take the lowest pressure, that is the ambient pressure. I'll take the ambient का pressure का line. Ambient pressure is 0.8 bar. The ambient pressure is 0.8 bar. So it is 0.8 bar. उसके बाद cabin pressure is 1 bar. I'll see that if anything is less than 1 bar. No, anything. Yeah, RAM air pressure is 0.9 bar. Okay. So the next line is RAM air pressure. Next line is RAM air pressure. Next line is RAM air pressure. Just a minute, my dear friend. I need a eraser. I need a eraser. Okay. The ambient pressure is 0.8 bar and the
ram air pressure is 0.9 bar. Ram air pressure is 0.9 bar. Ram air pressure is 0.9 bar. So after ambient pressure line, there is a ram air pressure line. After that, there is a cabin pressure line. Ram air is 0.9 bar. Cabin pressure is 1 bar. After that, there is a main compressor line. After that, there is a main compressor line. Main compressor pressure is 3.6 bar. Is that okay? Main compressor. So I'll write compressor only because there is only one compressor. Ambient pressure is 0.8 bar, RAM is 0.9 bar, cabin is 1 bar, compressor is 3.6 bar. तो आपको जब भी TS डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? You are going to draw the pressure lines. You are going to draw the pressure line. This TS diagram is for simple air refrigeration system. This TS diagram is for simple air refrigeration system, simple air cooling system. Simple air cooling system. मैं refrigeration slash cooling लिख देता हूँ. Is that okay, my dear friends? So this is simple Yes. air cooling system. Now we are going to draw the So what is the first process? First process is ramming, and it is given that ramming is isentropic. So 1 to 2 is isentropic ramming. 1 to 2 is isentropic ramming, and 2 to 3 there will be compression process. 2 to 3 there will be a compression process. 2 to 3 is compression process. If it is isentropic compression, it will be like this. But it is given that the compressor have 80% efficiency. That means it is not isentropic, so there will be entropy addition. So there will be another line 2 to 3 dash. There will be another line 2 to 3 dash. Is that clear? ये जो 3 dash है यहाँ पर हमारा कंप्रेसर का एग्जिट है. ये जो 3 dash है हमारा यहाँ पर कंप्रेसर का एग्जिट है. Is that clear? Now 3 dash to 4 is the first heat exchanger or the only heat exchanger in simple air refrigeration system. And it is given that the temperature of air leaving the heat exchanger is 60 degree Celsius, that is 333 Kelvin. तो इसके corresponding जो temperature है वो कितना है दोस्तों? इसके corresponding जो temperature है वो 333 Kelvin है. ठीक है? From heat exchanger, it will go to the cooling turbine where it is going to expand till the cabin pressure. Cabin pressure is maintained at 1 bar, and the isentropic expansion will be 5, but it is given that the turbine is having a 75% efficiency. The turbine is having a 75% efficiency. So we are drawing a entropy addition to this expansion process. So air at point 4 expands till 5 dash, and after 5 dash it goes into the cabin. After 5 dash it goes into the cabin, which is maintained at 0.6. After 5 dash it goes into the cabin, which is maintained at 0.6. It is clear, my dear friends? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Is it clear to everybody? It is said that the cabin is maintained at 27 degrees Celsius, which is equal to 300 Kelvin. और आप देख सकते हैं ये हमारा T6 है, which is 300 Kelvin. दोस्तों हमारा एटमॉस्फेरिक एयर T1 कितना टेम्परेचर है? 293. हमें कूलिंग पर्पस कितने पे करना है? 300 पे करना है. हमें 7 केल्विन का एयर कंडीशनिंग करना है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैंने आपके सामने ये जो डायग्राम बनाया है, आप लोगों को क्लियर है? और मैंने क्वेश्चन को रीड करते वक्त 1 2 3 4 बोला था बिकॉज हमें याद था बहुत सारी चीजें. ठीक है, मुझे पूरा का पूरा सिस्टम याद था, मुझे पूरा का पूरा टीएस डायग्राम याद था, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करते करते 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिया था. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप इस सिस्टम को यूज टू होगे, आपको एक क्वेश्चन रीड करते ही आपको मालूम पड़ जाएगा. इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? Yes, sir. So my dear friend,
इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और रीड करते हैं. दिस data belongs to a simple air refrigeration cycle of 20 tons of refrigeration. The ambient air temperature and pressure is 20 degrees Celsius and 0.8 bar. The RAM air pressure is 0.9 bar. Compressor outlet pressure is 3.6 bar. Temperature of air leaving the heat exchanger is 60 degrees Celsius. Pressure of air leaving the turbine is 1 bar. Pressure of air leaving the cabin is 27 degrees Celsius. The compression and turbine efficiency is 80% and 75% respectively. Assume no pressure drop in heat exchanger. Isentropic ramming process है. Mass of air circulated per minute, power required and COP. ठीक है. How will we find mass of air circulated per minute? सर आपने कल बताया था, हमें सिस्टम का कैपेसिटी बताया है. सिस्टम का कैपेसिटी है 70 किलोवाट्स, which will be written as m dot cp T6 minus T5 dash. है ना दोस्तों? Yes, sir. T6 minus T5 dash. तो हमें यहाँ पर CP पता होगा, T6 पता होगा, T5 dash पता होगा, 70 पता है, तो हमें m dot मिल जाएगा. जैसे m dot मिल जाएगा मैं पावर निकाल सकता हूँ. पावर विल बी m dot Cp into change in temperature of compressor. So it will be T3 dash minus T2. पावर मिल गया. एक बार आपको पावर मिल गया तो आप Q डिवाइडेड बाय पावर करो तो आपको COP मिल जाएगा. ये चीज आपने कल भी किया था, ये चीज करना है दोस्तों. ये क्वेश्चन आपके पिछले साल मई में 2019 में 12 मार्क्स के लिए आया था. ठीक है. जब से टी मैथ चालू हुआ है तब से 12 मार्क्स का ये आ रहा है. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. सो नाउ इट इज वेरी क्लियर. एक छोटा सा टीएस डायग्राम और बनाते हैं. ठीक है. ये अपना टीएस डायग्राम है. क्लियर सबको? यस माय डियर फ्रेंड्स. क्लियर दोस्तों? अरे किसी को मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? यस सर, क्लियर है. क्लियर है. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इतना ही सुंदर ड्रॉ कर सकते हैं. चलो नाउ लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. बेटा सॉल्यूशन निकालने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पता होना चाहिए. थर्मोडायनेमिक रिलेशंस एक बार मुझे पता है तो आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस एंड वी हैव P1, वी हैव P1, वी हैव P2, वी कैन फाइंड T2. तो आई नीड कैलकुलेटर का हेल्प. कैलकुलेटर वाले बच्चे तैयार हो जाएं. T2 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by P1 रेज टू गामा माइनस 1 बाय गामा. और इससे मुझे T2 मिलेगा. T1 है आपका कितना बेटा? सर 303.027 केल्विन बराबर. और P2 इज 0.9, T1 इज 0.8. तो आपको 293 T1 से T2 मिला. कितना मिला बेटा? 303.027. 303.027 केल्विन. ठीक है दोस्तों. जब एटमॉस्फेरिक एरोप्लेन में आता है तो उसका 303 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है और हमारी रिक्वायरमेंट है 300. इसीलिए हमें रेफ्रिजरेशन करना पड़ता है, कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप. वंस द एयर कम्स इनसाइड द प्रोसेस इज रैमिंग. आफ्टर रैमिंग देयर इज द कंप्रेशन. सो व्हेन वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस, again we are going to use the same formula. T3 by T2 is equals to P3 by P2 raised to gamma minus 1 by gamma. ठीक है बेटा. हमारा P3 3.6 है, P2 0.9 है, T2 अभी 303.027 आया. तो आप लोग मुझे T3 बताएंगे. 450.3. 450.3 केल्विन. यहाँ पर एक पॉइंट है. ठीक है. जैसे मुझे T3 आ गया तो मुझे याद आया सर 2 to 3 compression process जरूर है, but compression is not efficient. It is given that efficiency of the compressor is कितना परसेंट है? 80%. It is given that efficiency of the compressor is 80%. और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि compressor का efficiency is difference of small upon difference of big. So the small difference is T3 minus T2 and big difference is T3 dash minus T2. Am I correct? Yes sir. 0.8 is equals to
T3 minus T2 divided by T3 dash minus T2, इससे मुझे T3 डैश का वैल्यू मिलेगा। जरा आप लोग बताइए कितना है T3 डैश का वैल्यू? 487.105. 487.105. Because of irreversibilities, we gain 37 Kelvin का टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो अब आपको थर्मोडायनेमिक्स का ब्यूटी समझ में आ रहा होगा। जैसे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें क्यों इतने सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। हमको T4 निकालने की जरूरत है क्या? नहीं सर, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 333 केल्विन। 333 केल्विन, तो हमें नहीं सर, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 333 केल्विन। हमें तो सीधा ही पता है कि सर T4 इज 333 केल्विन। T4 is 333 केल्विन, तो हमें तो पता है, तो हम क्यों जाके एक्स्ट्रा मेहनत लेंगे? 333 केल्विन। तो फिर T4 दिया क्यों है बेटा? T4 दिया है आपके कूलिंग टरबाइन की एनालिसिस करने के लिए। कूलिंग टरबाइन के अंदर प्रोसेस कौन सा है दोस्तों? 425। कूलिंग टरबाइन के अंदर है प्रोसेस 425। वी हैव T4, वी हैव P4, वी हैव P5 and we will find T5. So T5 by T4 is equals to P5 by P4 raised to gamma minus 1 by gamma। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दो बेटा। इतना सिंपल क्वेश्चन करके 12 मार्क्स मिलता है एग्जाम में। ठीक है बेटा, T5 का वैल्यू कितना आया? T5 कितना है? 1 बार। 3.6 बार कितना आया? 230.940. 230.940 Kelvin. Again, it is given that turbine is 75% efficient. The efficiency of the turbine is 0.75, which is small upon big. What is small? They have difference of 4 and 5 or 4 and 5 dash. Sir, it is this 4 and 5 dash. 4 and 5 dash. ये देखो, ये लाइन, ये डिफरेंस छोटा है और ये डिफरेंस बड़ा है ना? इसका और इसका डिफरेंस बड़ा है। तो इट इज T4 minus T5 dash, T4 minus T5 dash upon T4 minus T5। ओके, तो हमारे पास T4 है और हमारे पास T4 है, हमारे पास T5 दिया है क्या भाई? हाँ सर, T5 निकाला सर, अभी निकाला। अभी तो निकाला, और हमारे पास न्यूटी है तो उससे हमें T5 डैश मिलेगा। तो बताइए T5 डैश कितना? 256.455। 256.455। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हमारे पास T5 डैश भी है, हमें दिया है T6 इज 300 केल्विन। पहला क्वेश्चन था हमारा, the first question was to find the mass flow rate. To find the mass flow rate, we are going to use the capacity of the system, which was 20 TR, which becomes 70 kilowatts, and that 70 kilowatt is nothing but m dot Cp into the refrigeration effect. And we are doing the refrigeration effect in the process 5-6. This process 5-6 is our refrigeration effect. Am I correct? This process 5-6 is our refrigeration effect. Yes, sir. Yes or no? The process 5-6. Yes, So this is T6 minus T5 dash. हमारे पास T6 है, T5 dash है। Cp का वैल्यू अपॉन एब है, Cp एब है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। ये भी किलोवाट्स में है, ये भी किलो जूल्स में है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज, कहाँ चला गया भाई तू? Okay, so we have T6, we have T5 dash, we have 70, therefore mass flow rate becomes, mass flow rate कितना हो जाएगा? 1.604 kg per second। आप लोग को याद है T6 और T5 dash का वैल्यू? हाँ सर, T6 Yes, और sir. T5 dash का वैल्यू पता है मुझे। हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया and we got 1.604 604. What will be the unit? kg per second। kg per second। Clear है? शेयरिंग आपकी Second part. The second question is find out the power required. We are running the power, that means we are running the compressor. We are running the compressor which is process 223 dash. Am I correct? So power P will be m dot Cp T3 dash minus T2. Power P is m dot Cp T3 dash minus T2.
सो पावर मिल जाएगा 1.604। T3 डैश का वैल्यू हमें आया है 487.105। Q2 इज 303.027। 487.105 minus 303.027। 296। सर सीपी मालूम है क्या? सीपी है ना, इधर लिखा तो सर ने सीपी ऑफ एयर, याद कर लो बेटा। जो हवा अंदर ले रहे हो ना, उसका सीपी 1.005 है। सीपी आप लगातार अंदर ले रहे हो, आपके आजू बाजू प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यही हवा ले रहे हो, यही स्पेसिफिक हीट आपके अंदर जाती है, इसलिए आपकी Okay, sir. बॉडी गर्म है, ठंडी पड़ गई तो निकल लियो, समझ लो। सर हाँ बेटा, शेयरिंग स्कीम आपकी बंद हो गई। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना यार, मैं इतना टाइम से कर किसको पढ़ा किसको रहा हूँ मैं। कब से बोल रहे हैं हम लोग। तुम लोग बात का बोले क्या? हाँ सर 4-5 बार बोला। अरे यार बेइज्जती हो गई। अभी क्लियर है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। सर P296। तो एम डॉट से स्क्रीन चला गया था बेटा, एम डॉट निकाला, उसके बाद हम पावर निकालें। पावर Yes, हम लोग sir. कंप्रेसर में अप्लाई करते हैं, तो कंप्रेसर का प्रोसेस है 2 to 3 डैश, तो पावर का फॉर्मूला है एम डॉट सीपी T3 डैश माइनस T2। तो एम डॉट हमें मिला 1.604, सीपी हमें याद रखना है। T3 डैश का वैल्यू आया था 487.105, T2 का वैल्यू आया था 303.027, वो सब्स्टिट्यूट किया और हमें अब पावर आएगा। तो हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज द पावर। 296 किलोवाट। 296 kilowatt. So दोस्तों, what is the COP of this system? The COP is Q by P. Q is 70. 0.24 0.23। 0.24 तो COP is 0.24। अरे बहुत घटिया सिस्टम है ये तो, है कितना COP Yes. देता है कम। ठीक है, अब ये सवाल तो आप लोगों की मदद से मैंने सॉल्व कर दिया। अगला सवाल, ये दिसंबर 2019 में 12 नंबर के लिए आया था। The following data refer to a simple aircraft refrigeration system, RAM, air temperature and pressure। अब आप तो जानते हो, RAM air मतलब, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। RAM air temperature and pressure is 30 degree Celsius and 1 atmosphere। Cabin air temperature and pressure is 27 degree Celsius and 1 atmosphere। Pressure at the exit of main compressor is 4.5 bar। Effectiveness of heat exchanger is 0.8। The load is 21 kilowatt। The compressor efficiency is 0.84। Turbine efficiency is 0.8। Determine the tonnage। इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल है यार, ठीक है। मास ऑफ एयर ब्लेड फ्रॉम द मेन कंप्रेसर, मास फ्लो रेट। हीट रिजेक्शन, ये अपना किसमें होता है बेटा? हीट रिजेक्शन होता है हमारे क्या बोलते हैं इसको, हीट एक्सचेंजर में। पावर कंप्रेसर के अंदर लगता है। सीओपी एंड पावर सप्लाई टू द ब्लोअर। अरे कुछ भी पूछते रहे, ठीक है। तो अब वो पहला सवाल समझ में आया? यस माय डियर फ्रेंड्स। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. एक मिनट, नहीं चला गया क्या मेरा? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ सर, स्क्रीन चला गया। एक मिनट, एक ही मिनट। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा 12 मार्क्स का आया था। अब इसका हम लोग टीएस डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। सर शेयरिंग कर रहे हैं आप? नहीं आ रहा है? हाँ, अभी आया। हाँ सर आया। My dear friend, this is our TS diagram। हाँ, लाइन गलत गलत दिख रहा है।
The highest pressure is in the main compressor. Now आप लोग ध्यान से देखिए, एक सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें सीधा रैम एयर टेम्परेचर और प्रेशर दिया है, कैबिन एयर टेम्परेचर और प्रेशर दिया है, मेन कंप्रेसर का एग्जिट प्रेशर दिया है, हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस दिया है, टरबाइन एफिशिएंसी दिया है और कंप्रेसर एफिशिएंसी दिया है। अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही प्रेशर लाइन आएगी, सिर्फ 2 ही प्रेशर लाइन आएगी, क्योंकि हमारा कैबिन प्रेशर और दूसरा कौन सा है बेटा, रैम प्रेशर, दोनों एक है। हमें रैम का टेम्परेचर प्रेशर दिया है, इसलिए हमें एटमॉस्फेरिक का डेटा चाहिए ही नहीं। तो यहीं से हमारा 1 चालू होता है, यहाँ से हमारा 1 चालू होता है, यहाँ से हमारा 1 चालू होता है। सो दिस इज आवर 1 to 2 is our compression process. 1 to 2 is our compression process, and according to the question, the compressor is 84% efficient. So 1 to 2 dash भी होगा, क्लियर है। 2 dash to 3 आपका हीट एक्सचेंजर, 3 dash to 4 आपका एक्सपांशन इन द टरबाइन, ठीक है। बट 4 नहीं होके 4 dash होगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट the turbine is 80% efficient. The turbine is 80% efficient. So 3 to 4 dash भी एक एग्जिस्ट करेगा, ये अपना 3 to 4 dash, फिर 4 dash से 5 हमारा 4 dash से 5 हमारा cabin. So it is given that the ram air temperature T1 is equals to 30 degrees Celsius. T1 is equals to 1 atmosphere. Hello? Hello? Yes sir. सर। T1 is 30 degrees Celsius, T1 is 1 atmosphere. ठीक है। एंड कैबिन का अब हम लोगों को 5 मिला है, T5 is equals to P1, that is same, and T5 is 27 डिग्री सेल्सियस। आपका जो P2 है that is 4.5 बार, हम लोगों ने पहले डायग्राम बनाया, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, आप लोगों ने क्लियर किया था कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रेशर लाइन बनेंगी। आप लोगों को कोई डाउट है इतने में? Yes, my dear friends, is there any doubt to you all? No, sir. No, na? So P2 No, is 4.5 bar. Effectiveness of the heat exchanger is 0.8. ठीक है? And let's proceed. So, हाँ. So we don't have T2 and T2 dash. तो कैसे मिलेगा? With the help of P1 and P2. So let's begin with the solution. So solution is this. यहाँ पर रैमिंग नहीं है, सीधा रैम प्रेशर दे दिया है, रैमिंग नहीं है, सीधा कंप्रेशन प्रोसेस है। पहला प्रोसेस कौन सा है? कंप्रेशन प्रोसेस। फॉर द प्रोसेस 1 to 2, सो P2 by T1 is equals to P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma. Therefore P2 is this. सर 463.95, मतलब सर हम लोग ने 1 एटमॉस्फेयर को 1.013 बार लिया और हाँ बराबर, वेरी गुड। और Yes, sir. P2 को 4.5 लिया, T1 आपका 303 है, यस है ना? सर, यस तो सर, T2 कितना है? 463.95। 463.95. It is given that the turbine compressor is 84% efficient. The compressor is 84% efficient. Compressor efficiency is small upon big. T2 minus T1 upon T2 dash minus T1. इससे हमें मिल जाएगा T2 dash। कितना है दोस्तों T2 dash? सर 494.60 494.60 Kelvin. It is given that the effectiveness of the heat exchanger is 0.8.
The effectiveness of the heat exchanger is 0.8. The effectiveness of the heat exchanger is 0.8 and that effectiveness will be calculated. कैसे calculate करते हैं? Actual heat transfer divided by the maximum possible heat transfer. तो actual heat transfer किससे किसके बीच में हो रहा है? 2' से 3. Maximum कितना होता था? 2' से 1. So it is T2' minus T3 upon T2' minus T1. दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो अगर इस पे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे डाउट अभी पूछ लो या लेक्चर के बाद फोन करके पूछ लो, लेकिन क्लियर कर लो. क्लियर है दोस्तों? ये इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर. इससे हमें क्या Yes, sir. मिलेगा? इससे हमें क्या मिलेगा बेटा? इससे हमें मिलेगा T3. कितना आया T3 जरा चेक करिए. तो आपके पास T2' है, आपके पास T1 है 341.32. 341.32. ठीक है, एक बार T3 मिल गया. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. इट इज गिवन दैट द cabin is maintained at 1 atmosphere and cabin is 4. अपने पास T4 है? नहीं. So let's find T4 and T4'. So let's move to the next page. Now in the cooling turbine we are carrying out a process. Which process we are carrying out? We are carrying out process 324. Am I correct? So Yes, sir. T4 by T3 is equals to T4 by T3 raised to gamma minus 1 by gamma. बराबर है? तो हमें T4 मिलेगा. अभी हम लोगों को T3 मिला था 341.32 है ना. T4 है हमारा 1 एटमॉस्फेयर और T3 है हमारा 4.5 बार. Sir, 222.911. T4. 222.909. 222.9 914. 1 ले लेता हूँ, चलेगा? या 222 ले लो. अब 222 ले लो. हाँ बेटा, ठीक है. आफ्टर कूलिंग टरबाइन अब क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो होगा कूलिंग. ये T4 ही तो T4' बन के कैबिन में जा रहा है. तो द टरबाइन का एफिशिएंसी, द टरबाइन इज 80% एफिशिएंट. अगेन इट इज स्मॉल अपॉन बिग. So what is small? T3 minus T4'. What is big? T3 minus T4. T3 minus T4' upon T3 minus T4. भाइयों T4' बताइए कितना है? कितना आया? 246.59. Once we got T4', now the question says the load is 21 kilowatt. ये लोड किसके ऊपर है बेटा? On the simple aircraft refrigeration system. That means ये अपना क्यों है, क्यों, ठीक है? ये अपना क्यों है 21 किलोवाट. सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे जो लोड है, कूलिंग लोड, that is 21 kilowatt. That is 21 kilowatt. So how to find the tonnage? Question 1. Tonnage. Sir, tonnage मतलब tonnage refrigeration ना sir. In terms of refrigeration. अभी आपके लोग टन से किलोवाट करते थे, आज अपने को किलोवाट से टन करना है. Divide by Divide by बराबर. 3.5. तो 21 divided by 3.5 कितना है बेटा? 6 sir. 6.6 किलोवाट. Sir, 6 only 6 आया. sir. 6 only 6. 6 tons of refrigeration. So this is our tonnage. Question 2. What is the mass flow rate of from the compressor? तो मास फ्लो रेट ढूंढना है तो मास फ्लो रेट आपको इसी से मिलेगा, Q से ही मिलेगा. m.Cp and the refrigeration effect is happening between 5 and 4. So m.Cp T5 minus T4'. एक बार जो रैम एयर में गया वही कंप्रेसर में जाएगा, वही हीट एक्सचेंजर में जाएगा, वही एयरक्राफ्ट के कैबिन में जाएगा. तो वही मास फ्लो रेट होता है. Q dot is equals to m.Cp. Don't get confused with the
don't get confused with the wordings. What is the mass of air bled from the main compressor for refrigeration? ठीक है, ये वही है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जा रहा है. तो Sir, 0.39 kg per second. 21 is equal to m dot is unknown 1.005 T5 हमको अभी थोड़ा टाइम पहले आया था. कितना आया था T5? T5 सर वो क्या है मतलब 27 डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन. 300 केल्विन माइनस T4 डैश कितना आया 246.59. कितना आया दोस्तों m dot 0.39 kg per second. 0.39 kg per second. What is the next question? What is the heat rejection? Where do we reject the heat? We reject the heat in the heat exchanger. So heat exchanger में m dot Cp T2 dash minus T3. So question 3, heat rejected in heat exchanger. What is that? Say Q23. Q23 is m dot Cp T2 dash minus T3. So heat rejected in the heat exchanger is equal to Q23. M dot is 0.39. Cp कितना है दोस्तों? 1.005. 60 point. T2 dash हमको मिला है 494.6 and T3 is 341.32. 494.6 minus 341.32. So what is QHX? 60.07. 7 kilowatt. Our m dot Cp T2 dash minus T1. There is दोनों है. Question 4. Power required is m dot Cp T2 dash minus T1 0.39 1.005. T2 dash कितना है? 75.09 kilowatt. T1 कितना है बेटा? सर T1 है 303. 03. आप लोगों ने 303. आपको याद हो गया इतने क्वेश्चन रीड करने. हाँ, क्वेश्चन पढ़ने से याद हो गया डेटा की आपने लिखा है? सर मतलब लिखा हुआ है ना सर. अब मैं भूल जा रहा हूँ. यस सर. पावर इज 75.09. किलोवाट ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज COP. Q upon W. Sorry, बड़ा Q upon W. 21 upon 75. 0.279. 0.279. Clear? आखिरी क्वेश्चन. पावर सप्लाई टू द ब्लोअर. भाई ब्लोअर किधर इस्तेमाल होता है? सर हीट रिजेक्ट टरबाइन के बाद टरबाइन में सर. ब्लोअर किधर इस्तेमाल होता है? पूरे सिस्टम में हमने कहाँ पढ़ा था ब्लोअर? आप लोग को याद आ रहा है? नहीं सर वो मतलब हम लोग उधर यूज करते हैं जिधर हीट एक्सचेंजर रहता है ना सर. जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेशन में कंडेंसर की उधर यूज करते हैं. मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ. सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम. ब्लोअर के कौन सा टाइप है? सर हीट एक्सचेंजर के नीचे रहेगा. ये हीट एक्सचेंजर है. ये ब्लोअर है क्या? हाँ हाँ, ये ब्लोअर इसको रन करता है कूलिंग टरबाइन को. कूलिंग टरबाइन को सर. तो आप क्या करोगे? ओपन जाते हैं आप उस पेज पे. तो हमारा जो कूलिंग टरबाइन है वो 3-4 रन कर रहा है. तो m dot Cp T3 minus T4 dash is our power supply to the blower.
So part 6 is power supply to blower. ब्लोअर हमारा कूलिंग टरबाइन को रन करता है और साथ साथ में इट सक्स द एयर, ड्रैम एयर. So power supply to the blower is power required to run the cooling turbine, and cooling turbine का process is process 3 to 4 dash. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं. Power supply to the blower is nothing but power required to run cooling turbine. So that power for process, which process is that? 3 to 4 dash. क्या हो गया भाई? Process 3 to सर आपका वो राइटिंग वाला स्क्रीन नहीं विजिबल है, वो ब्लोअर what is वाला visible? स्क्रीन. हाँ? वो ब्लोअर आपने अभी स्क्रीनशॉट दिखाया ना. ओहो, एक्चुअली हाँ. एक ही मिनट ना. स्टॉप शेयरिंग. एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ. Now everything will be visible. The power 3 to 4 dash is m dot cp t3 minus t4 dash. 37.129 किलोवाट. मेरे को तो खुद एक भी वैल्यू याद नहीं रह रही, आपको कैसे याद हो जा रही है? सर वो लिखा है इसलिए हम लोग सर कैलकुलेट पहले ही कर देते. आप लिख लेते हो क्या? हाँ ये सर, सर लिख रहे हैं ना हम लोग. लिख रहा है वेरी सर. नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार पीछे जाकर देखना पड़ रहा है. और आप दो लोगों के अलावा बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे क्या? सॉल्व कर रहे हैं सर. तो हम लोगों ने बूटस्ट्रैप सिस्टम, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे न्यूमेरिकल्स कर दिए, और बाकी न्यूमेरिकल्स अगर करना होगा तो वी विल डू ऑन प्रैक्टिकल सेशन. और आप लोग क्या कर सकते हो, खुरमी गुप्ता के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं और टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आप उसको फॉलो कर सकते हो. उसमें कोई डाउट हो तो हम उसको प्रैक्टिकल सेशन में कवर कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके सर. हाँ, यस सर. अगर हम लोग उसको कवर करेंगे तो हम लोग का सब क्लियर हो जाएगा. बट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, जो आता है वही आएगा. बूटस्ट्रैप आता है बूटस्ट्रैप आएगा, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आता है सिंपल आएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. सो Yes, sir. आज के लिए इतना ही. मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू सर कंप्लीट ऑल दोस थिंग्स. एनी डाउट? सर आपने वो जो एक लिंक आपने इस पे डाला है सर गूगल क्लासरूम पे, वो हम लोग को जो 6 रेफ्रिजरेशन साइकिल बना के वही अपलोड करने के लिए डाला है ना सर? हाँ हाँ, जो पहले मैंने बोला था ना कि आप लोग क्लासरूम पे अपलोड कर देना, तो आपने बोला कोई लिंक नहीं है. मैंने लिखा हाँ है सर, yes, sir. क्लासरूम असाइनमेंट, तो उसके अंदर 6 रेफ्रिजरेशन हाँ, सिस्टम sir. आपको अपलोड करना है. और एक दूसरा असाइनमेंट Okay, बनाया sir. है जिसके अंदर आपको पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और उसके बाजू में उसका फॉर्म भी है. आपने देखा वो? यस सर. हाँ सर, वो देखा सर. उसका असाइनमेंट मैंने है 28 फैक्ट. 28 लंबा दिया है. 28 इज वेरी फार. वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक टुडे. 28 is the last date, so don't try to submit it at the last. Try to submit by this Sunday. Is that clear? 28 को लिंक बंद हो जाएगा. उस दिन तक जो देगा उसको उसका मार्क्स मिलेगा, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा. अगर आप लोगों ने अभी कर लिया है, आपके पास ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन एक्सेप्ट थियरी, तो आप उसको लिखिए, उसको अपलोड करिए, आपका काम हो गया. आपका टॉपिक रिवाइज हो गया, आपको क्लियर हो गया. तो आपका ऑलमोस्ट 20 मतलब 20 मार्क्स का हो गया, मतलब 25% सिलेबस कवर हो गया. क्लियर है? यस सर. 12 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, 10 मार्क का उस पर थियरी आता है, 10 से ज़्यादा भी आता है, तो ऑलमोस्ट 22 मार्क्स हो गए यहीं पे. Any doubt related to this topic, related to the numericals conducted yesterday, today? नो सर. So that's all for the day. Take a break. अगला लेक्चर 11:30 बजे क्या? 11:40. 11:40 को है. हाँ, तो लंबा आधे घंटे का ब्रेक लो. मेरा लेक्चर 11:20 तक था, मैं 11 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूँ आज. थैंक यू सर. चलो बाय, टेक केयर. ओके सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू Bye, सर. sir. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. किसी को कोई डाउट है वो रुकेगा, बाकी लोग दे कैन लीव.
Anybody want to ask anything? Anybody want to discuss anything? सर इसमें दो ही प्रेशर लाइन कैसे आया वो नहीं पता चला मेरे को सर। तो अब भी पूछ रहे हो आप? सिंपल है यार, ये देख मेरे दोस्त, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, आप दिख रहे हो वीडियो। ओके चलो मैं अपना स्क्रीन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था कि रैम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन रैम से ही शुरू हुआ है, हाँ सर। ठीक है? रैम प्रेशर कितना है बेटा? 180 एटमॉस्फेयर। कैबिन प्रेशर कितना है? 1 180 तो जो रैम प्रेशर है वही कैबिन प्रेशर है, मैंने वही ड्रॉ किया। रैम प्रेशर इज इक्वल टू कैबिन प्रेशर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है? और इसमें कोई एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर प्रेशर बताया नहीं है, तो वो लाइन एम्बिएंट दिया ही नहीं है सर। हाँ वो चली गई, हाँ सर। ठीक है? और उसके बाद रैम का डायरेक्ट दे दिया है, तो वो आइडियल है कि एक्चुअल उसे लेना देना नहीं अपने को, दिया है मतलब दिया है। इससे दो ही प्रेशर लाइन आई, एक 1 एटमॉस्फेयर की और एक 4.5 बार की। आ गई बात समझ में? सर मतलब रैम एयर और कैम्बिएंट एयर का प्रेशर सेम ही हो गया? नहीं, उसने एम्बिएंट के बारे में बताया ही नहीं। सॉरी, कैबिन एयर का प्रेशर, सॉरी सर। हाँ, कैबिन और रैम का सेम ही प्रेशर है। हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू सर। तो बाकी सब चीजें तो ऐसी चीज है। तो मैंने कल ही बोला था कि हमें थर्मोडायनेमिक्स पता रहना चाहिए, उस हिसाब से हम कुछ भी बना सकते हैं। क्लियर है? हम Yes, अगर sir, याद thank करके you, जाएंगे तो हम जैसा क्वेश्चन बुक में देख के जाएंगे वैसा एग्जाम में तो आएगा नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा ही है। तो हमें अगर पता होगा कि क्या क्या होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी न्यूमेरिकल। तो अभी हम लोग के पीछे जो सिस्टम है, ये हम लोगों ने इसमें 3 लाइन बनाई है। बुक में जो हमने पढ़ा उसमें 4 लाइन बना, 4 प्रेशर लाइन यहाँ पे नीचे थी। और वही सिस्टम है, ये भी सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये भी सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें 2 ही प्रेशर लाइन है। और अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो बुक के अंदर ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके अंदर टोटल 5 प्रेशर लाइन है ना? यस दिख सर। रहा है? बुक दिख रहा है?